All right, guys. So let's begin with voting procedure. Now, please don't look at these sections just as the section in the isolation. Please understand that these are the sections of strategic importance. Across India, I've seen that people just like that, हाँ हर section की तरह section 107, 8, 9, 10 पढ़ ले रहे. Please don't do that. Understand that to have the edge in entire Companies Act 2013, these are the sections which you need to master. First of all the decision making, all the decisions are being taken at the general meeting. Most of the decisions, the major structural decisions, the major decisions are taken by the members of the company who are the real owners of the company. So you need to really understand how the decisions are taken. I mean to say how the decisions are being taken in the meeting. So naturally, we need to really understand how the voting happens in the meeting. Now, how many sections are there to understand, which provide for the meeting, which provide for the voting conduct, which provide for the mode in which the voting will be done at the meeting? Only 107, 8, 9, 10. Section 107, 8, 9, 10. Before I jump to 107 directly and we start, straight away talk about only 107, I think it is important that I deliberate on all the sections and the differences between the voting patterns. As a student, you must understand why I'm not jumping to MOA alteration in SBC, why I'm not jumping to various other things which have been provided for in SBC chapter, for example conversions, is because until I tell you exactly about 107, 8, 9, 10, it is impossible that a student would have a flow in which one should be studying. So it's very important. I am specifically repeating, there are few things which you really, as the students, please understand, you will not know what you actually want. You might never understand कि आपको actual में क्या चाहिए. But over the period of 9 years, I have understood that this is the most critical thing. Okay? Steve Jobs once used to say, sometimes people don't know what they want. You give them that. So that is the reason Apple is ahead of the curve. So sometimes what happens is, please do not just study this as isolated section. ये सिर्फ एक section नहीं है, ये पूरे Companies Act 2013 में fundamental बातें हैं जो आपको हर chapter में काम आएगी. Believe me, Part C, SBEC, conversion वाला chapter SBEC, MOA alteration SBEC, when we go to share capital वाला portion in Companies Act, everywhere this will be important because हर जगह resolution पास होना. Resolution exactly कैसे पास होना है? 107, 8, 9, 10. So let's try and understand the difference between 107, 8, 9 and 10. So first of all, now before even I tell you the exact stuff, I hope you are aware 107 provides for voting by show of hands. So this is the most simple way in which the voting used to happen. So probably the chairman at the meeting would read the resolution loud and by show of hands people will vote, am I for the resolution or against the resolution. अगर मुझे resolution के खिलाफ vote करना है तो मैं हाथ against में उठाऊंगा. अगर मुझे favor में vote करना है तो मैं for में उठाऊंगा. If you have been into the meetings, especially in Nagpur, many companies, when the meetings happen, if you have been there, I think we studied in CAPS in 2009 and we used to attend a meeting of CRIMS hospital because वन कैप से सामने था, टू हमारे क्लास के किसी स्टूडेंट ने हमको पास दे दिया था अंदर जाने का. तो सब लोग हाथ उठा के वोटिंग कर रहे थे, तो हम देख रहे थे, हम तो ऐसे ही गए थे देखने के लिए. बट 107 fundamentally provides about the voting by show of hands. This is one way of voting at the meeting, at the venue where the meeting is basically being held. Then we have 108 अगर आपने पुराना कंपनीज एक्ट 2013 का बेयर एक्ट लिया होता तो द हेडिंग, द नेम ऑफ द सेक्शन वाज ई वोटिंग. Eventually this is the only section 108 in the previous in the video where I talked about all the sections. I specifically told you that 108 is one section which was earlier notified Companies Act 2013 आई तो 108 को उन्होंने नोटिफाई किया था. उसके बाद एक बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस गौतम पटेल ने एक फटकारता हुआ जजमेंट निकाला जो गोदरेज प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस से था, और उसके बाद ये सेक्शन को डी नोटिफाई किया गया और फिर मेरे ख्याल से 2015 मार्च फरवरी में री नोटिफाई किया. तो बहुत ही क्रिटिकल बिकॉज इट टॉक्स अबाउट, इसका नाम भी ई वोटिंग से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम कर दिया गया है. सो 108 इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, 109 इज मीटिंग by poll, 110 is of course
postal ballot, voting by postal ballot. Now let's try and understand the fundamental difference between all the four. I would like you to pay attention on the screen now. Focus on the screen and try and understand this critical stuff. I repeat, please don't behave like a kid. This is not CSET, this is not your 11th 12th exam, this is CS executive, wherein you probably will master the subject here. ठीक है? Please do not compare. CSET बच्चों का खेल है. Please start understanding. Behave like an adult. When you're sitting at home, look at the video. Please have the thought process. 107, 8, 9, 10 ये चारों तरीके से जनरल मीटिंग में वोटिंग होने वाली है. कब क्या होगा, कब कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर हम आएंगे. ठीक है, हम लोग आ रहे हैं 107 पे. बट यार मुझे चाहिए कि अभी के अभी नेक्स्ट 15-20 मिनट्स आपको कुछ बेसिक बातें तो मालूम होनी चाहिए. और मैं जो चार्ट बनाऊंगा आप मेरे साथ चार्ट बनाएंगे, फिर ही आप घुसेंगे सेक्शन में. ठीक है, मैं क्यों इतना पत्थर मार मार के बोल रहा हूँ? बिकॉज भाई मैंने फाइनल पढ़ाया हुआ है. फाइनल के बच्चों को भी सवाल जवाब पूछो, कंफ्यूजन से मरे हुए रहते थे. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए. नाउ व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस? ठीक है, अभी तो हम सेक्शन में गए नहीं हैं, हम जाएंगे सेक्शन में. बट सबसे पहले तो भाई क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस है चारों में? तो सबसे पहली बात तो मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिए हैं जिसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग फोकस करें. एक कि वोटिंग कहां होगी. ओके, सो वन इज वोटिंग कहां होगी, ये हम लोग को समझना है. मतलब 107, 8, 9, 10 मतलब शो ऑफ हैंड में वोटिंग होगी तो होगी कहां? 108 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मीटिंग में वोटिंग होगी तो होगी कहां? 109 वोटिंग बाय पोल वोटिंग होगी तो होगी कहां? सेक्शन 110 पोस्टल बैलेट वोटिंग होगी तो कहां होगी, है ना? सो सबसे बेसिक बात, एग्जैक्टली वोटिंग होने कहाँ वाली है. तो मेरे भाइयों, अगर हम सेक्शन 107 की बात करें, हम लोग जब बात करेंगे वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स की, तो वोटिंग होगी वेन्यू पे. वेन्यू का मतलब मीटिंग जिस फिजिकल वेन्यू पे बुलाई गई होगी, एग्जैक्टली वोटिंग वहाँ पे होगी. अगर टीसीएस की मीटिंग बिरला मातोश्री सभा मुंबई मरीन लाइंस में बुलाई गई है, तो एग्जैक्टली वहीं पे मीटिंग जो वेन्यू है, फिजिकल वेन्यू है, वहाँ पे वोटिंग होगी. वहाँ कंपनी के मेंबर्स आएंगे, वहाँ हाथ उठा के वोटिंग करेंगे. 108 प्रोवाइड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम. अगर मैं बात करूं वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बाय ईवीएस या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, प्लीज अंडरस्टैंड कि वोटिंग 2 तरीके से हो सकती है. नंबर 1, एट द वेन्यू, जो फिजिकल वेन्यू होगा वहां पे भी वोटिंग हो सकती है. साथ ही साथ there is one more way which has been provided in the act, which is remote e-voting. Actually, in fact, the expression remote e-voting has been specifically defined. I think in rule 20 of the chapter 7 rules, you will specifically see remote e-voting has been specifically defined because it caused a lot of confusion. Logo ko 108, when I say logo ko, I mean the people in the industry and the stakeholders which are part of the fraternity. 108, 110 में कंफ्यूजन था बहुत लोगों को, इसीलिए रिमोट ई वोटिंग शब्द आया. रिमोट ई वोटिंग का मतलब फंडामेंटली होता है वोटिंग फ्रॉम एनी अदर प्लेस बट नॉट एट वेन्यू. तो जब हम 108 की बात करते हैं तो वोटिंग कहाँ कहाँ होगी? एक, फिजिकल मीटिंग जहां हो रही होगी वहां पर. सेकेंडली, आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप फिजिकली वहां वेन्यू पे वोटिंग ना करते हुए कहीं से भी कर लें. वेन्यू को छोड़ के कोई भी और जगह से करोगे रिमोट ई वोटिंग. सर मतलब हाँ, तुम अपने घर में बैठे हुए, अपने घर के बाथरूम में बैठे हुए हो, वहां से तुमने अपने आईपैड से वोटिंग कर ली, रिमोट ई वोटिंग है. तुम खापरखेड़ा में हो, लोनावला में हो, तुम मेरठ में हो, तुम हैदराबाद में हो, तुम कहीं भी हो, तुम मीटिंग में जहाँ जिस वेन्यू पे मीटिंग है वहाँ पे नहीं हो, तुम कहीं से भी अपना वोट एक्सरसाइज कर रहे हो, तुमको ये मौका मिलेगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रिमोट ई वोटिंग. फंडामेंटली इन 108 वोट करने का 2 तरीका होगा, एक वेन्यू पे, दूसरा वेन्यू के अलावा कहीं से भी.
Coming to the third type, that is 109. 109 provides for voting. I'll specifically show you the videos wherein the voting happens. I will show you a lot of stuff. Please do not worry about it. But fundamentally this would mean that वेन्यू पे वोटिंग होगी. आई मीन टू से जिस जगह पे मीटिंग हो रही होगी वहीं पे लोग वोटिंग करेंगे. शो ऑफ हैंड्स में सिर्फ हाथ दिखा के करते हैं और इसमें बैलेट पेपर्स मिलते हैं. उसमें 109 में वहां वोटिंग होती है. यार 110 के बारे में ना, दो कान है ना, तो दोनों को और मतलब हेडफोन अंदर घुसा दो पूरे अंदर और फिर सुन लो. सेक्शन 110 में इट प्रोवाइड्स फॉर पोस्टल बैलेट. मैं पता है तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, प्लीज ये गलती मत करना. फाइनल में आके इंटरव्यू में जाओगे, पहला क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, वहां पे अगर तुमने कांड पीट दिया ना, मुंह काला करोगे, मेरा भी खुद का भी. सेक्शन 110 पोस्टल बैलेट की बात करता है. और जो पोस्टल बैलेट की हम बात करेंगे, अगर वोटिंग हो रही होगी पोस्टल बैलेट के थ्रू, अगर 110 आने वाला होगा बीच में, अगर वोटिंग हो रही होगी पोस्टल बैलेट से, तो एक बात याद रखना कि मीटिंग होती ही नहीं है. ठीक है, मीटिंग वेन्यू मतलब कोई फिजिकल मीटिंग होती ही नहीं, और फिजिकल मीटिंग होती ही नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता वेन्यू पे वोटिंग का, है ना. मैं ना, पता है अभी मैं क्लास में नहीं हूँ, और ना मैंने बचपन में ड्राइंग को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन मैं क्लास में हर बार ना कबूतर बना देता हूँ यहाँ पे. पता है क्यों कबूतर बनाता हूँ मैं? ताकि तुमको याद रहे. सेक्शन 2 क्लॉज 65 कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस पोस्टल बैलेट. पोस्टल बैलेट का शब्द का मीनिंग डिफाइन किया गया है. इट ओनली मीन्स वोटिंग बाई पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. पोस्टल बैलेट में मैं एट दिस मोमेंट इतना ही चाहता हूँ तुमसे कि तुम इतना याद कर लो कि जब मैं बोलूँगा वोटिंग होगी पोस्टल बैलेट से, आई ओनली मीन भाड़ में गई दुनियादारी. एट दिस मोमेंट मैं तुमको इतना बताना चाहता हूँ कि भाई सुन, फिजिकल मीटिंग होती ही नहीं है तो वेन्यू पे तो वो हो ही नहीं सकती ना. जब मीटिंग फिजिकली हो ही नहीं रही है, वेन्यू पे वोटिंग हो ही नहीं रही है, वेन्यू पे मीटिंग हो ही नहीं रही है, तो वेन्यू पे वोटिंग कैसे होगी? तो मीटिंग होती ही नहीं है, यहाँ पे होती ही नहीं है मीटिंग, वेन्यू पे कुछ होता ही नहीं है. इसीलिए एक बात याद रखना कि कुछ भी हो जाए, मीटिंग कहाँ नहीं होती है, कहाँ नहीं होती है, वेन्यू पे नहीं होती. क्योंकि मीटिंग फिजिकल मीटिंग होती ही नहीं है तो वोटिंग वेन्यू पे कैसे होगी? तो वोटिंग इज नॉट एट द वेन्यू. ठीक है, घर बैठ के पोस्टल या तो पोस्ट से करना पड़ता है, या आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट कर सकते हो. बहुत सिंपल है. देखो बहुत ही ज्यादा तुम ना पूरे आदत लगी है दुनिया में कंफ्यूज होने, जबरदस्ती लोग बैठ के कंफ्यूज हो रहे हैं. कंफ्यूज होने की आदत छोड़ो, 2 मिनट के लिए क्लैरिटी सुनो मेरी बात. अबे साले हम कोई भी चीज में लॉगिन आईडी, लॉगिन और पासवर्ड से क्या करते हैं? लॉगिन डाला, पासवर्ड डाला, हम अंदर घुस गए, है ना. उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, यस और नो लिखा रहेगा, तो तुम क्या करोगे? यस में हाँ, ना में ना. अबे मेरे भाई वहां पे भी ऐसी होता है, एक बैलेट पेपर होता है ऑनलाइन, उसमें रेजोल्यूशन लिखा होता है, सामने कॉलम होता है, फेवर में वोट करना है. दिखाऊंगा ना, आन तो दो, सेक्शन 110 में दिखाएंगे आपको जी. लेकिन पोस्टल बैलेट में भाड़ में कहीं दुनिया में को गाली देना अलाउड नहीं, तो मैं तुमको चिल्ला के बोलता 110. अगर मैंने कभी तुम्हें कोई मिल गया, मैं तुमको पूछा पोस्टल बैलेट में वेन्यू पे वोटिंग होती है क्या, तुमने हाँ बोले, मैं बता रहा हूँ, मैं छोड़ूंगा तुम्हें. ठीक है, 110 वेन्यू पे वोटिंग नहीं होती. ठीक है, नाउ दिस इज वन पार्ट. तो मैं तुमको ये बोलना चाहता था कि ये 4 चीज में एक चीज याद रख लो. कौन सी? वोटिंग कहाँ होती है. तो चारों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. 108 में 2 तरीके हैं वोटिंग के, या तो घर बैठे कर लो या तो मीटिंग में आके कर लो. 107 109 में मीटिंग में आके वेन्यू पे करना है. 110 सिर्फ घर बैठे. ओके, नाउ let me deliberate on the second point of difference that I want to very clearly specify. Now what is the second point of difference? The second point is वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड अगर हो रही होगी तो वहां पे एक आदमी को 1 हैंड 1 वोट माना जाएगा. क्यों पता है? क्योंकि वो आदमी अपने फोरहेड पे यहाँ पे टैटू नहीं करा के आया कि मेरे पास कंपनी के 1.5 करोड़ वोट है. उसका हाथ देख के एक वोट काउंट किया जाता है. ठीक है, ये टैटू नहीं किया हुआ. इसका मतलब ऊपर से आकाशवाणी नहीं हो रही होगी जब वो स्क्रूटिनाइजर गिन रहा होगा ना वोटिंग को, सुन बे गधे, इसने जिसने हाथ खड़ा, ऐसा नहीं होता. पार्टी फॉर माय लैंग्वेज यार, थोड़ा आर्टिस्टिक लिबर्टी दिया करो टीचर को. ये भी एक आर्ट ही है यार, आपको पता नहीं व्हाट गोज बिहाइंड द सीन्स, आपको कोई आइडिया ही नहीं है. एनीवे में सुनो मेरी बात. 107 जब वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स होगी ना,
तो मेरे भाई 107 के हिसाब से जब वोटिंग होती है ना, तो एक आदमी जो वोट कर रहा होगा उस एक हाथ को क्या गिना जाएगा? 1 वोट। और उस आदमी के बाद 1,500 करोड़ वोट हो, 1,500 करोड़ शेयर हो, तब भी एक वोट है, एक शेयर है तब भी एक वोट है। ओके, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि उसके पास शेयर्स कितने हैं, उसका वोटिंग राइट कैसे डिटरमाइन हो रहा है? कम ऑन, 1 member 1 vote. In all the cases the voting is on the basis of proportional basis पे होता है, मतलब 1 share is 1 vote, 1 share is 1 vote, 1 share is 1 vote। क्योंकि बाकी तीनों तरीके में हमारे पास मीन्स और वेज हैं एग्जैक्टली पता लगाने के पास कि जो वोट कर रहा है उसके कितने शेयर्स हैं। ओके, ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। 107 वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, 108 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, या तो घर बैठे कर लो या तो मीटिंग में आके कर लो। 109 सिर्फ वेन्यू पे, 110 सिर्फ घर बैठे। वेन्यू मीटिंग होती ही नहीं है तो मीटिंग में आके भी वोटिंग कैसे करोगे, है ना? दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस दैट आई वांट यू टू वेरी क्लियरली नो, वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड। ओके, चलो लेट्स गेट इनटू 107 नाउ। if you want to take a moment, you want to take a screenshot, write down. If you want to give a thought to it, then jump to 107. It's not about कि just like that कोई सेक्शन है यार, मजाक थोड़ी चल रही है, हर जगह इम्पैक्ट होगा इसका, ठीक है? जंग जब जीती जाती है ना, जब कोई लड़ाई हो रही होती है, अब जैसे कारगिल युद्ध हुआ था तो टोलोलिंग टॉप करके एक हिल के ऊपर एक चोटी थी जिसपे कैप्चर करना जरूरी था। टाइगर हिल बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये 2 जगह अगर कैप्चर नहीं करते तो जीत नहीं सकते थे कारगिल। तो ये ना वैसी वाली टोलोलिंग टॉप है, जिस पॉइंट को आपने कैप्चर कर लिया तो यहाँ से दुश्मनों को मारना काफ़ी आसान है। ये पकड़ लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला चैप्टर, बोर्ड मीटिंग का चैप्टर शुरू होगा, आई विल कम टू द स्ट्रेटेजिक पॉइंट। ये कुछ चीज़ें पकड़ ली ना आपने, कंपनीज एक बाएं हाथ का खेल है। पता है, मतलब हम लोग फ्यू डेज बैक वी विजिटेड अ जिम, वहाँ पे एक सरदार जी किसी से बात कर रहे थे, पता है उन्होंने एक बहुत सही बात बोली। बॉडी बोले वहाँ पे सिर्फ जिम में मशीन हिला के नहीं बनाई जाती, बोले बॉडी यहाँ से बनाई जाती है। तो CS बनने के लिए ना आप सिर्फ पागलों तरह पलने पलटाते रहोगे, दैट्स नॉट हैपन। कभी कभी बिना किताब के, बिना आईपैड, बिना लैपटॉप, बिना इसके अकेले, बिना किसी पेन पेंसिल के बैठ के सोचना। पता है क्या, बहुत ज़्यादा भी हम लोग ये पेपर बहुत ज़्यादा लिखना शुरू कर दिए हैं। सही बात तो ये है कि यार बड़े बड़े दुनिया के सारे बड़े काम बिना लिखा पढ़ी के होते हैं, ठीक है? कभी कभी एकांत में बैठ के सोचो इसके बारे में, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसको पकड़ लिया ना, साला पूरा कंपनीज एक्ट 2013 ईजी हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स हैं ऐसे जो काफ़ी ईजी हो जाएंगे, ठीक है? इनफैक्ट टू टेल यू फ्रैंकली, when we will study 110 in detail, there will be at least 12 matters, 10 matters, उससे कम से कम 10 क्वेश्चंस पे कब्जा होता है। 108, 110 को अब दोनों को बहुत टाइट रखना पड़ता है क्योंकि एक दूसरे के साथ ही वो पढ़ना पड़ेगा उसको। मतलब 110 अगर 108 फॉलो कर लिए तो 110 एग्जाम्प्ट हो जाता है, ठीक है? तो मजाक मत करिएगा इस पोर्शन से, ठीक है? चलो एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेक्शन 107। चलो अच्छा,